education officers from different states. We have 41 blocks for which we were arranging the training across 6 states in northern India. Uh, so before we start with the sessions, let's have just introduce yourself with some adjective to your name. If your name is Jitendra, you will say I am Jolly Jitendra, I am Josh Jitendra, whatever. जो भी आपके नाम का पहला अक्षर है, उस नाम से अपने आप को आप कैसे एड्रेस करना चाहोगे, उसी नाम से आप अपना एड्रेस करोगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे. आप बताओगे कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन से ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है. और then we have also given you a performer in which you will be putting down your profile. What is your achievements, अपने ब्लॉक में क्या क्या काम किए हैं. So we'll just start with the introduction, please. Good morning all. I am talented Tehina Bashir from Block Singhpura, District Baramulla. Good morning everyone. This is Suri Shazia, Aspirational Block Fellow, Block Karen, District Gupwara. Good morning all. Vijeta Bandana, Block Education Officer from Sialde, Almora, Uttarakhand. मैम कुछ अपने नाम के आगे, विजेता के आगे भी कुछ लगाइए ना. सर वंदना मेरा नाम है, विजेता मेरे विश्लेषण है. Good morning all. मैं वंदना कौशल, वंदना विक्ट्री. I'm from Block Nirman, District Kudu, Himachal Pradesh. BEO Nirman. Block Turi, District Sangrur. I work as BNO and Headmaster, Block Turi, Rajamata. I am Gurashan Singh, as a Block Education Officer, Turi District Sangrur. Good morning everyone. This is Simranjit Singh, Educational Block Fellow Turi, District Sangrur. मेरा एडजेक्टिव है सिरेन मीन्स का अनुसार. अमर सिंह बजाज, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक बदरपुर, उत्तराखंड. प्रशासन अनिल कुमार, UIT, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तीसरा. कुछ अपने नाम दे के डी तो कुछ लाओ ना. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं तो दलजीत जी, कुछ डेयरिंग दलजीत समथिंग के नहीं डेयरिंग है, डेडिकेटेड. जी मैं मुर्तजा अली, J&K रजौरी हूँ. एज ए टीचर अपने नाम लेकर मैं मोटिवेशन लगाना चाह रहा हूँ. हरवीर सिंह, प्रिंसिपल, तेरा BO नवारो, हरियाणा. तारीफ कुछ अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ तो कीजिए. सभी को नमस्कार. मैं वीर विक्रम सिंह, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश से एजुकेशन ब्लॉक जवाहरा की ओर से BO द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया हूँ. मैं डिस्ट्रिक्ट मणिपुरा, प्रोसेस विलेज, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी जम्मू एंड कश्मीर. Hello everyone, I am Masudan Magre, journalist in Singhpura, Patan. And I'm from Jammu and Kashmir, and I'm deputed as Aspiration Block Fellow at the Thakrapur Block of Riyasi District. Thank you. Good morning everyone. This is Passionate Prachi Manral and I have been appointed as ABF for Bahadrabad Block, which is in Haridwar District. Thank you. Good morning everyone. Myself is Dev Shah, daring and dedicated. Good morning. My name is Gurgeet. I will add the adjective of gentlemanly and the Maku district role. Thank you. Good morning everyone. Myself, Brilliant Bhupinder Singh from
block Mahu, district Kozhikode, Punjab. Good morning, everybody. My name is Sincere Surendra. I am aspirational block fellow, district Bageshwar, block of Court, state Uttarakhand. Thank you. हाँ जी, सारा सत श्री अकाल जी। मेरा नाम राम सिंह, ब्लॉक सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन CHT सेंटर हेड टीचर। राम सिंह जी कुछ तारीफ भी कर दो बड़ी। पर बाहर ही नहीं था लगभग पूरा इंडिया गड्डी दे विच स्कूटर दे भी विद फैमिली घूमता है। हजूर साहब, पटना साहब, नेपाल, काठमांडू विद फैमिली 2 बच्चे लैके मिसेज दे नाल दो टूर जेडे आ वो स्कूटर दे एक हजूर साहब का, एक नेपाल, काठमांडू। So you are a wanderer or traveler. हाँ जी, उस तो बाद गड्डी दे विच मतलब बॉम्बे, गोवा, केरला, कन्याकुमारी, नेपाल, काठमांडू, सॉरी असम, गुवाहाटी, शिलांग, चिरापुंजी, मेघालय, हाँ जी, उधरों नेशनल ओपन पार्क काजीरंगा तक जी, इधरों श्रीनगर को एंटर करके लेह लद्दाख से मनाली पहुंचा जी, लगभग हाँ जी। Good. So we have a lot of things to learn from you. आपने सारे country घूमी हुई है. Thank you. Good morning, everyone. This is Good Dana Manisha from Sultanpur Lodi, Kapurthala. Good morning, everyone. I am Prabhat Kaur, Vaishnavi Prabhat Kaur. I am from district Kapurthala, Block Tilma. Good morning all. This is Govind Singh Desla, ABF Uttarakhand Chale. Nawang Namgyal from Ladakh. I am zonal education officer from Yuma, where the Ruksha block is fall within this zone. Thank you. तो मैं सभी को जुले कहना चाहता हूँ सबसे पहले ना, क्योंकि हमारे लद्दाख में जुले बहुत कॉमन चीज है, जिसमें मतलब कुछ 4-5 सेंटेंस एक कॉमन होते हैं, जैसे नमस्ते हो गया, गुड बाय हो गया, हेलो हो गया, हाय हो गया। इन सब के लिए हमारे पास एक ही काम है कि जुले से हर चीज इसमें कवर होता है। तो सबको मैं जिम्मेद की तरफ से जुले। थैंक यू। Myself, Ramjit Singh. I belong to district Mewat or passionate to my work. कि जिस काम को हम करते हैं ना, उससे हमें अच्छा होने की उम्मीद होती है, तो काफी अच्छा हो जाता है। मेरा जो जिला है वो वर्किंग जिला जो है वो मेरा डिस्ट्रिक्ट नून है, मेवात, स्टेट हरियाणा। और दूसरी बार मैं आया हूँ, पहले भी हमने पिछली बार भी हम आए थे, तो काफी अच्छा और काफी हमने अच्छा किया भी वहाँ। जैसे कि कम्युनिटी अवेयरनेस वैन के बारे में हमने पिछली बार यहाँ भी जिक्र किया था, और हमारे जो सीओ साहब है उनके सामने उनको बच्चे छूट जाते हैं या उनके पेरेंट्स कि उनके मतलब जागरूकता के लिए एक कम्युनिटी अवेयरनेस मैन के लिए हमने वहाँ DC साहब को और सीओ साहब को भी कहा था। और पिछली बार जो यहाँ जितने भी डेलीगेट्स आए थे उन सभी के सामने हमने जिक्र किया था, तो वो हम कर तो नहीं पाए, लेकिन मून जैसे चांद सबके लिए रोशनी देता है, इसलिए हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य सबके लिए तालीम पहुंचाना। मैं वापस हरियाणा। Good morning, everyone. Myself is Melody Manish Kumar. I'm here as a block level officer from district Mewat, Haryana. Very good morning, everyone. I'm Diligent Diskit, ABP fellow from Kasha block, district Kargil, UT Ladakh. Thank you. Good morning, everyone. I am Peaceful Prerna. I am an ABF from Block Gadarpur, State Uttarakhand. Good morning, everyone. This is Truthful Chanangal from Leh, Professor, and currently I'm working as the IBP in charge. Thank you. Good morning, everyone. My name is Tashi Dalek Negi, Tactful Tashi Negi. I'm from district Kinnaur, Food Block, Himachal Pradesh. Thank you.
morning to all. This is Sadakat Hussain, sportive Sadakat Hussain. I am from J&K district Police, Black Marcourt. सर आपने इनोवेशन की बात की तो हमें HP. Good morning everybody. I am Adventurous Arvind. I represent Zone Madhwa District Kishtwar J&K. सभी को नमस्कार। मैं जोशीलाल जलकंड, खंड शिक्षा अधिकारी वाडड़ा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा। Good morning everyone. This is Ishfaq Gulzar. I am deputed as an aspirational block fellow in Block Education, and I would love to say that I am imagining. Good morning. I am Magnetic ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर फ्रॉम उत्तराखंड मोरी ब्लॉक। तो पंकज जैसे कि कमल बताया जाता है, तो मैं मेरी टोपी पे आप सब लोग देखते हैं ब्रह्म कमल खिला हुआ है, उत्तराखंड की कैप है। तो मेरा प्रयास है कि मैं कमल खिलाऊं अपने ब्लॉक में, और चूंकि ब्रह्म कमल तो बहुत ऊंचाई पे खिलता है, 3500 मीटर की हाइट लगभग, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने ब्लॉक के इंटीरियर से इंटीरियर स्कूल में पैदल चल के जाऊं और वहां के अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स से मिलूं और उनको मोटिवेट कर सकूं। तो काफ़ी इंटीरियर ब्लॉक है हमारा, और यहाँ हमारे आए हुए साथी किन्नौर और उससे भी हैं, तो हम आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मेरे ब्लॉक से ट्रैक चलती है, 5-6 दिन का रास्ता है, और वो सांगला चिटकुल निकलती है। तो यहाँ के साथी जो हमारे आए हैं, इनसे परिचय प्राप्त करके जाऊँगा और वो ट्रैक करके जल्दी आपके साथ मिलूँगा। थैंक यू। I think we have distributed the profile to all of you. Just you can fill out the ये हमारी एक्सपेक्टेड डिलीवरीज है। तो वहाँ पे एम्बुलेंस पहले से एक हफ्ते से पहले लीनिएट रहती थी कि वहाँ के लिए हमें रेडी रहना है, या फिर 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वो उनको हॉस्पिटल्स में ले आते थे। इससे क्या हुआ, उनका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत अच्छा हो गया। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि एक सॉल्यूशन है, क्रंचेस में भी सॉल्यूशन है, तो हमें उस पर वर्क कर सकते हैं। और ये हम अपने इसमें एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं ना सर, कि कहाँ मैपिंग कर रहे हैं। जो है वो 70 टीचर स्टूडेंट जो है 70 स्टूडेंट्स या 80 स्टूडेंट जो है उनको कहीं कहीं पे ओनली 1 टीचर इज हैंडलिंग, और कहीं कहीं पे हमारे पास 70-80 टीचर्स स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे 8-9 टीचर्स आर हैंडलिंग सेम। ऑफलाइन एरिया में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि लैक ऑफ फैसिलिटीज। ये मेरे पॉइंट इस तरह से लिखा है कि रिलक्टेंस फ्रॉम टीचर्स टू प्रोवाइड देयर सर्विस इन रिमोट रीजन्स। ये पंजाब में भी ऐसा ही है कि बॉर्डर के आसपास नहीं रह जाते, वो बटाला या फिर पठानकोट वहाँ पे अपने रिमोट एरिया अगर किसी की रिक्रूटमेंट उधर पोस्टिंग होती है तो 1.5 साल बाद ट्रांसफर करवा सेम सिचुएशन के माइंड में बस ये रहता है कि यहाँ से हम ट्रांसफर करवा लें अपने। ये इस तरह का मैं हरियाणा के बताऊँ, जैसे माना हमारा डिस्ट्रिक्ट नूहू है, तो मैं पुनौना ब्लॉक से आता हूँ जी। पुनौना ब्लॉक में आज भी जो रेशियो है वो सभी की, जैसे मैंने बताया, सर ने बताया कि RT के तहत तो 30 पे 1 टीचर होना चाहिए, तो वहाँ आज 80 बच्चों का तकरीबन 1 टीचर मिल रहा है जो ये आप ब्लॉक लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी ने ये बताया कि लगभग वहाँ पे नहीं 80 ब्लॉक बढ़ता चला जाता है, जैसे 30 के जगह 80 तक पहुँच चुका है। नहीं, बॉर्डर हरियाणा की बॉर्डर मतलब हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर पड़ता है ना ये ब्लॉक है, पर फिर भी वो तो मतलब इतना, जैसे हमारा वाला, जैसे इनके केस में वो हिली है इसलिए नहीं जाना चाहिए, उनके केस में है वो कि वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, लेकिन जो राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है वो तो संपन्न है, मतलब इस तरह से देखा जाए तो जो अपना वहाँ डिस्ट्रिक्ट नूहू है ये हालांकि गुड़गांव हिंदुस्तान का टॉप मतलब एडवांस डिस्ट्रिक्ट है, और गुड़गांव के सटे हुए में मेवात डिस्ट्रिक्ट है। तो मेवात डिस्ट्रिक्ट से फिर हम जब ब्लॉक में जाएंगे तकरीबन 45-50 किलोमीटर दूर मतलब अपने ब्लॉक में पड़ेगा, तो ब्लॉक में वहाँ फिर सभी सुविधा, बसों की सुविधा कम है। हाँ, तो इसलिए तकरीबन नहीं, मतलब मैं ये फिर दोबारा वही पूछूंगी, रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो उस मतलब दुर्गम क्षेत्रों में नहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो ट्रेनिंग अपनी जो बदली है वो वापस अभी चल रही है, बाकी तब भी जो हो पाते हैं तो सारे ज़्यादातर वहाँ ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब इतनी पूरी नहीं हो पाती।
जैसे मान लें आप जैसे डिस्ट्रिक्ट मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, ये पुराने की बात करूँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट एवरेज से ऊपर है मेरा परसेंटेज। हाँ, जो मैंने अब डाटा एक एक स्कूल से इकट्ठा करवाया और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन निकाल के पीपीटी जो हमने बनाई है वो स्टेट एवरेज से अबव है। मतलब ये सारे वहाँ के टीचर की जो सैलरी है वो जो रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में जो टीचर्स काम करते हैं सेम इक्वल सैलरी है। अब वहाँ पे जाने के लिए कोई टीचर तैयार नहीं है। क्यों नहीं जाने के लिए? क्योंकि उसको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। वो सोचता है भाई कोई सिटी में बैठा हुआ ऐश कर रहा है, वो भी यही तनख्वाह ले रहा है, मैं ऊपर जंगलों में जाकर ड्यूटी दे दूँ, मुझे भी यही सैलरी मिल रही है, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? अब अगर उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाए 10,000 रुपया, या जैसे कि सर ने कहा उनको सीनियरिटी बेस पे लाया जाए, तो मुमकिन है कि कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार है। मैंने खुद बताया, मैं वहाँ ही इस वक्त बिलोंग कर रहा हूँ और मैं वहाँ, मेरी ड्यूटी वहाँ ही है जहाँ पे रोड बाईपास जो है इस वक्त क्लोज है। वो रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ कब कनेक्ट हो जाएंगे, इट में टेक्स 1 मंथ और इट में टेक्स 2 मंथ्स। अब खुद समझिए आप, ना इलेक्ट्रिसिटी है ना इंटरनेट है, हाउ दे पीपल सर्व दियर। वहाँ पे जाके पढ़ाना, वहाँ पे जाके, तब भी वहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें इतना फर्टाइल है कि दे आर कंपीटिंग विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टूडेंट्स। और हमारे जून के जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्जाम्स में नंबर 1 पे आते हैं। इतना हम वहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इंटरनेट कम्युनिकेशन, और ये प्रोजेक्टर का तो वहाँ कंसेप्ट ही नहीं है अभी। प्रोजेक्टर क्या हुआ, लैपटॉप का, अब खुद समझ लीजिए आप कितना। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੈਕੈਂਟ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, पोस्ट तो है ही नहीं कोई खाली। That is not in our hand। वो ऐड होनी चाहिए ना इसमें, ऐड करोगे कि ये सभी पोस्टें फिल होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट में जो है ऐसी पॉलिसी इसमें निकालनी चाहिए कि चाहे हम आपको इंसेंटिव एक्स्ट्रा दे दे या आपको सीनियरिटी बेस पे वहाँ पे ले ले। इंसेंटिव जो अगर पोस्टें फिल भी कर दी तभी इंसेंटिव मिलना चाहिए, तभी मिलना चाहिए। इस पे ज्यादातर पॉलिसी, क्योंकि उस पे भी कोर्ट केस हो जाते हैं, आपको नहीं पता ना। DPI भी है अपना, DPI डिप्टी भी, इधर भी डिप्टी है कि चलो डिप्टी DO, इधर भी डिप्टी DO हो गया है। उस तो गाड़ी BPO साहब आ गए ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ CHT ਆ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-4 CHT, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ BPO ਹੈਗੇ ਆ। CHT ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਥੱਲੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। हमसे जबरदस्ती ली गई है लास्ट मोमेंट पे, रिपोर्ट हमारे पास पहुंची नहीं, डाटा फीड करो, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਡੀਓ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਡੀਓ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਡੀਓ ਨੇ ਬੀਪੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ बढ़िया, बहुत अच्छे ब्लॉग है। 9 ਡੀਪੀ ਲੱਗੇ 3 ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨੂੰ 4 ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ बुक दिया। और हमने थोड़ा लंच तक बहुत कड़ी एक्सरसाइज भी की है, अपने आप को जगाए रखा है, तो उसके लिए शाबाशी भी दे लीजिए अपने आप को। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये ग्रुप नंबर 3 था, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट को। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे साथी हैं, हमारे साथ हरियाणा से सर हैं, पंजाब से, मैं उत्तराखंड से। तो हमने नाम दिया था इसको तिरंगा। एक तो 3 नंबर मिला और फिर पूरे भारत को। तो टास्क भी हमारे लिए, जो आप इंडिकेटर देख सकते हैं हमारा, ये जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई थी, टास्क नंबर 5 PTR वाला। PTR की जब डिस्कशन कर रहे थे हम लोग आपस में, तो ये देखने कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। कहीं तो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है, स्टेट लेवल पे टीचर्स की भर्ती होती है,
कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर्ती हमारे नेम्स के इनिशियल है तो हम स्मार्ट हैं। तो जो हमारे की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स थे वो था सेकंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ट्रांजिशन फ्रॉम अपर प्राइमरी लेवल टू सेकेंडरी लेवल एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंडरी लेवल टू हायर सेकेंडरी लेवल। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो है पहला कि अगर कोई फीमेल स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग her 10th वो जा रही है किसी वोकेशनल कोर्स के लिए, उसका कोई ट्रैक नहीं हो रहा कि मतलब कितने गर्ल्स जा रही है फ्रॉम दिस, वो पढ़ाई में है लेकिन वोकेशनल में है, तो उसका कोई ट्रैक नहीं हो रहा कि वो वोकेशनल में गए। उसका मतलब एक रजिस्टर जैसी मेंटेन होनी चाहिए कि कितनी गर्ल्स है, कितनी परसेंटेज है। दूसरा कि लैक ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट्स, इसको राम जी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 11 ਦੇ 11 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ शादिया वो इंडिकेटर टूट जाएगा। ये जो इंडिकेटर है ये मतलब हर स्टेट के अपने अपने कंस्ट्रेंट हैं इसको मेंटेन करने के। उससे पहले तो मुझे पता नहीं, मैं भी ज़्यादा इस विभाग में 2015 में आया हूँ। 2010 में हमारा RT एक्ट आया था, तो RT एक्ट ने इसको स्ट्रीमलाइन किया और प्राइमरी लेवल के लिए 1 to 60 यहाँ थोड़ा मतलब उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं 1 to 60 की जो हमारी एनरोलमेंट होगी उस पर 2 टीचर्स, लेकिन उसको इंटरप्रेट इस तरीके से नहीं कर सकते कि 30 पे 1, ये थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन रहेगा। 1 to 60 पे 2 चाहिए, चाहे बच्चा हमारे पास स्कूल में 5 है या 10 है, हमको फिर भी 2 टीचर चाहिए। तो 1 to 30 RT एक्ट बिल्कुल कहीं इसको नहीं करता, क्योंकि इसका लाइव एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। हमारे स्टेट में ये समस्या आई थी उत्तराखंड में, एंड इन द ईयर 2020 गवर्नमेंट केम अप विद अ गवर्नमेंट ऑर्डर। उन्होंने कहा था कि जहां आपकी 10 से कम स्ट्रेंथ है वहां 2 टीचर हैं तो आप एक को हटा के दूसरे में भेज सकते हैं जहां जरूरत है। लेकिन फिर उसका विरोध हुआ कि भाई RT एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं आप, वो तो 60 तक की स्ट्रेंथ पे 2 टीचर्स की बात करता है, तो आप नहीं हटा सकते। तो फिर वो गवर्नमेंट ऑर्डर वापस लेना पड़ा और स्टेटस को हैज टू बी मेंटेन। तो ये वाला जो हमारा दिक्कत है, इसको एक तो ब्लॉक लेवल पे हम लोग बड़ी मुश्किल होती है कि रीडिप्लॉयमेंट करने की, क्योंकि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है वो मैंने बताया आपको कहीं पे पढ़ाई, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में हिली एरिया, जो प्लेन एरिया जहाँ पे वो टुक वगैरह गाड़ियाँ चलती है, बट हिली एरियाज में प्रॉब्लम हो जाती है उनको। फिर सीजनल माइग्रेशन, जैसे इन्होंने बोला सिमरन जी ने कि हम पंजाब में जो यूपी हरियाणा वगैरह वाले होते हैं वो समर्स में चले जाते हैं, घर अपने उनको शादियाँ होती है वहाँ पे, तो वो एग्जाम के ही टाइम पे चले जाते हैं, तो इसकी वजह से गर्ल्स का एजुकेशन जो है वो बहुत हैम्पर हो जाता है। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन इन टीचर्स ने हर साल जब सेम सिलेबस पढ़ाया वो बोर हो जाते हैं खुद भी कि हर ही साल सेम पढ़ा के उनको कोई मोटिवेशन रहता नहीं है। दूसरा वही जो एक बार यहाँ डिस्कस हुआ कि अगर एक टीचर है वो हिली एरिया में पढ़ा रहा है तो उसको वो भी होता है अंदर से कि मुझे कोई इंसेंटिव एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा एज कम्पेयर टू दो जो प्लेन एरियाज में पढ़ा रहे, तो उनका भी ऐसा कुछ इंसेंटिव्स का कुछ हो। फिर अर्ली मैरिजेस इन सम कम्युनिटी, जैसे JNK में गुजर कम्युनिटी है या कोई और कम्युनिटीज़ है, इनमें अर्ली मैरिजेस हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़कियां नहीं पढ़ पाती फिर ऊपर। डोमेस्टिक हेल्प ऑफ द फैमिली, मतलब लड़कियों को हमेशा इसे घर पे हेल्प करनी पड़ती है घर वालों की, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही अपनी पढ़ाई को, सो दे हैव टू गो इनटू देयर डोमेस्टिक हेल्प ऑल्सो। फिर सफाई सेवक, ये टॉयलेट्स के रिलेटेड है कि अगर स्कूल में टॉयलेट्स है तो कोई सफाई सेवक या ऐसा कोई होना चाहिए जो साफ करे उनको, मतलब दे बिकम डिसफंक्शनल आफ्टर सर्टेन टाइम। Then there is lack of toilets in certain areas या separate toilets नहीं होते हैं, and then that is lack of motivation of students। कभी-कभी गर्ल्स स्टूडेंट्स में खुद की मोटिवेशन नहीं होती पढ़ने की, तो उनको मोटिवेट कराना चाहिए। फिर इसमें जो हमारे गदरपुर उत्तराखंड ब्लॉक से हूँ और हम लोगों ने मैं एजुकेशन ब्लॉक में काम कर रहा हूँ, बेसिक एजुकेशन से मैं भी हूँ, 82 लेवल पे हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे स्कूल लेवल पे 5th क्लास में और 8th क्लास में और 10th क्लास में एक रजिस्टर बनवा दिया है, और 5th क्लास वाले में जैसे ही रिजल्ट आउट होता है
उनको कहते हैं कि आप उनको टीसी दीजिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दीजिए, और उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग करनी है कि उसने किस स्कूल में एडमिशन्स लिया है और उस रजिस्टर में बाकायदा उसको मेंटेन किया जाए। तो ये हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इससे हमें कहाँ जा रहे हैं, तो एक बहुत ईजी हो जा रहा है कि बच्चा ट्रेस हो रहा है और जो हमारी ये परसेंटेज है वो अप हो रही है उससे। मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं सर? मॉनिटरिंग वो बच्चे हैं नोन है, जैसे 5 तक के बच्चे हैं तो बिल्कुल लोकेलिटी के होते हैं, 1-2 किलोमीटर के होते हैं, तो बच्चों से पता कर लिया, या उनके जो उसके नेक्स्ट आ रहे हैं जूनियर बच्चे आ रहे हैं, ब्रदर या कजन जो भी आ रहे हैं, या कहीं पर अगर हमें घर पे भी जाना होता है तो हम चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग एडमिशन के टाइम भी जाते हैं ना। अप्रैल में हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है, हमें मोटिवेट करना होता है पेरेंट्स को। उनको थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ स्कूल बस या ट्रैवल अलाउंस टू स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को जिनको बहुत दूर से बहुत मुश्किल से आना पड़ता है उनको थोड़ा बहुत ये मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ। फिर फैमिली एंड ग्रुप काउंसलिंग या अर्ली मैरिजेस या सीनियर माइग्रेशन इसके रिलेटेड है कि फैमिली या कोई ग्रुप को अच्छे से अवेयर करे या उनको समझाए कि एग्जाम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बच्चों की पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फिर है ये सेंसिटाइज टीचर्स अबाउट देयर रोल इन सोसाइटी, उन टीचर्स के लिए जिनको मोटिवेशन नहीं रहती बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको भी हमें सेंसिटाइज करना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पढ़ाना है। उसके बाद अवेयर द पेरेंट्स अबाउट डीमेरिट्स ऑफ अर्ली मैरिज फॉर दोज हु गेट देयर डॉटर्स एट मैरिड एट अर्ली एजेस, तो उनके लिए हमें उनको समझाना है कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ गेटिंग योर डॉटर मैरिड। So ample opportunity should be given for study for the girl, उनको एक ample टाइम मिलना चाहिए कि उनको अगर डोमेस्टिक हेल्प करनी है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, नहीं कि पूरा टाइम ही वो डोमेस्टिक हेल्प करे, उनको पढ़ाई को भी ध्यान देना है। फिर है मनरेगा इंक्लूजन, ये है फॉर सफाई सेवक, या अगर 100 डेज गारंटीड वर्क मिल रहा है तो उस 100 डेज गारंटीड वर्क में क्यों नहीं कोई ऐसा एक आए सफाई सेवक जिसको वही 100 दिन स्कूल्स के वॉशरूम साफ करने का काम दिया जाए। उसके बाद है अगर हम या बच्चों में भी इनकलकेट करें जापान मॉडल, जैसे जापान में छोटे बच्चों को वहाँ कोई सैनिटेशन वर्कर वगैरह नहीं होता तो उनको खुद सिखाया जाता है, ऐसा ही कुछ हो यहाँ पे भी बच्चों को खुद सिखाया जाए सफाई करने का। प्लांटेशन चाहिए 200, कम से कम 200 प्लांट से लगा सकते हैं एक जगह पर, तभी हमें वो फंड मिलेगा, प्रपोजल डाल सकते हैं। तो हमने 10 सेंटरों की डाल दी कि वहाँ पर प्लांटेशन करवानी है, प्लांटेशन भी करवा दी और साथ ही उसकी सफाई भी होगी मनरेगा की। ये कुछ काम है ना, हम ग्राउंड लेवल पर जाकर वहाँ की टीम या सफाई तो पूरे गांव की कर सकते हैं ना, स्ट्रीट वगैरह की टीम में डाल दो, अप्रूव्ड वर्क है जो किए जा सकते हैं, लेकिन मैम बैठे हैं तो वो भी नोट डाउन। और हमने थोड़ा लंच तक बहुत कड़ी एक्सरसाइज भी की है, अपने आप को जगाए रखा है, तो उसके लिए शाबाशी भी दे लीजिए अपने आप को। थैंक यू। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये ग्रुप नंबर 3 था, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट को। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे साथी हैं, हमारे साथ हरियाणा से सर हैं, पंजाब से, मैं उत्तराखंड से। तो हमने नाम दिया था इसको तिरंगा। एक तो 3 नंबर मिला और फिर पूरे भारत को। तो टास्क भी हमारे लिए जो आप इंडिकेटर देख सकते हैं हमारा, ये जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई थी, टास्क नंबर 5 पीटीआर वाला। पीटीआर की जब डिस्कशन कर रहे थे हम लोग आपस में, तो ये देखने कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। कहीं तो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है, स्टेट लेवल पे टीचर्स की भर्ती होती है, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर्ती। तो ये जो इंडिकेटर है ये मतलब हर स्टेट के अपने अपने कंस्ट्रेंट हैं इसको मेंटेन करने के। उससे पहले तो मुझे पता नहीं, मैं भी ज़्यादा इस विभाग में 2015 में आया हूँ। 2010 में हमारा RT एक्ट आया था, तो RT एक्ट ने इसको स्ट्रीमलाइन किया और प्राइमरी लेवल के लिए 1 to 60 यहाँ थोड़ा मतलब उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं 1 to 60 की जो हमारी एनरोलमेंट होगी उस पर 2 टीचर्स, लेकिन उसको इंटरप्रेट इस तरीके से नहीं कर सकते कि 30 पे 1, ये थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन रहेगा। 1 to 60 पे 2 चाहिए, चाहे बच्चा हमारे पास स्कूल में 5 है या 10 है, हमको फिर भी 2 टीचर चाहिए। तो 1 to 30 RT एक्ट बिल्कुल कहीं इसको नहीं करता, क्योंकि इसका लाइव एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। हमारे स्टेट में ये समस्या आई थी उत्तराखंड में, एंड इन द ईयर 2020 गवर्नमेंट केम अप विद अ गवर्नमेंट ऑर्डर। उन्होंने कहा था कि जहाँ आपकी 10 से कम स्ट्रेंथ है वहाँ 2 टीचर हैं तो आप एक को हटा के दूसरे में
भेज सकते हैं जहां जरूरत है। लेकिन फिर उसका विरोध हुआ कि भाई आरटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं आप, वो तो 60 तक की स्ट्रेंथ पे 2 टीचर्स की बात करता है, तो आप नहीं हटा सकते। तो फिर वो गवर्नमेंट ऑर्डर वापस लेना पड़ा और स्टेटस को हैज टू बी मेंटेन। तो ये वाला जो हमारा दिक्कत है, इसको एक तो ब्लॉक लेवल पे हम लोग बड़ी मुश्किल होती है कि रीडिप्लॉयमेंट करने की, क्योंकि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है वो मैंने बताया आपको कहीं पे जब खाना आता था उसके सामने तो हमेशा अच्छा नहीं इस तरह वो अपने बुराई करता था खाने की। तो वजीर ने सोचा यार जब भी अच्छा खाना आता है तो बादशाह हर खाने की बुराई करता है। तो बादशाह से कहा वजीर ने कि चलो आज से बादशाह साहब सलामत हम किसी जंगल में चलते हैं, कोई शिकार देखते हैं। तो बहुत दूर ले गए उसे, और इतना दूर कि वो शाम को वापस आना वक्त उनके लिए संभव नहीं था। तो वापसी में जब उसे बहुत भूख लगने लग गई तो उसने कहा कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी इंतजाम कीजिए। रास्ते में एक कोई भटियारन थी, तो उसके पास खाने के लिए पूछा गया। उसने कहा मेरे पास, वजीर से कहा मेरे पास तो कल का कोई दलिया है, बाजरे का दलिया पड़ा। तो बादशाह के लिए वो पेश किया, भूख अच्छी थी तो उसने आया। तो उसने कहा कि वजीर साहब ये तो बहुत अच्छा है यार, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब एक दिन का दलिया पुराना था, बासी था, मतलब वो भी उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसे भूख थी। कई बार क्या होता है कि जब, और उसने ये कहा कि भाई ये दलिया भी अपने उसमें लागू कर दो कि हम दलिया बनाएंगे, रस खा लेंगे। कई बार कोई हमारे पास जो चीज़ होती है ना उसकी अहमियत भी नहीं होती। यहाँ इस सेमिनार आने से मुझे ये फ़ायदा मिला है कि कई बार हम सोचते हैं कि अपने इलाके में यार ये साधन नहीं, ये नहीं। अब मैंने जम्मू कश्मीर की मिसाल देखी, उत्तराखंड देखी, अब ऐसा लगने लगा कि नहीं अपने वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। तो ऐसे नहीं कि ये अपनी समस्या है, ये तो सबकी समस्या है। हमें लग रहा है कि हमारे पास जो भी वो बेहतर है और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो बहुत ये मैंने बढ़िया, मिसाल दी। बहुत बढ़िया जी। अब जैसे ये अपना केस स्टडी जो रखा गया है कि So we got the same case study, that is the construction of pink toilets, जिससे एक बात तो रियलाइज हो गई उनका सुनने के बाद, चीज़ें सेम है लेकिन नज़रिया बदलता है। तो यही हम इसीलिए हम शायद यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम सेम है, नज़रिया थोड़ा अलग अलग है। कोई उसी कॉन्स्ट्रेंट में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कोई है जो उसी कॉन्स्ट्रेंट पे फोकस कर रहा है। बस ये है, तो हम नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी सर ने भी बोला। तो जो हमारा केस स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ पिंक टॉयलेट सेम है, उन्होंने एक्सप्लेन किया वही है, बट जो हमारा थोड़ा डिफरेंट है, मैं अभी उसी पे फोकस करूंगी। तो जो की स्टेक होल्डर्स हैं उसमें ऑब्वियसली अथॉरिटीज तो हैं, लेकिन कम्युनिटी भी है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जब हम किसी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स कितने बेटर होते हैं। तो दैट्स द वन पॉइंट। और जो टेक्निक यहाँ पे यूज हुई, कन्वर्जेंस, हमारे 3C में से 2 C's हैं यहाँ पे, कन्वर्जेंस, ऑपरेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द कम्युनिटी। एंड जो हमारा इसमें की चैलेंजेस सेम ही है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वॉशरूम, स्कूल